अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस है इसका हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या फैसला है। वो तो आपको मालूम है, फैसला 6-4 से आया है। हम आपको इस फैसले में क्या अहम चीज़ें थी और आज कोर्ट रूम के अंदर माहौल क्या था, ये बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। हम आपको ये बताएंगे कि आज क्या था कोर्ट रूम के अंदर माहौल। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिवली असद तूर अनसेंसर्ड आपको सुनवा रहा है जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस में जब कोर्ट रूम में जजेस ने ये फैसला अनाउंस किया। हम जजेस की जुबानी आपको ये फैसला सुना रहे हैं एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा। ज़रा सुनिए मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने क्या फैसला सुनाया। By majority of 6 to 4, Justice Umar Ata Bandial, Justice Sajjad Ali Shah, Justice Munib Akhtar and Justice Qazi Muhammad Amin Ahmed dissenting. These review petitions, except as mentioned below, are allowed. Civil review petition number 296 of 2020, titled Justice Qazi Faiz Issa versus the President of Pakistan and others, is allowed by 5 and dismissed by 5 honorable members of the bench. Four of us who've been named before have dismissed these petitions. The short orders signed by the other learned judges are as follows. For the reasons to be recorded later, captioned review petitions are allowed and directions contained in paras 4 to 11 of the impugned short order dated 19/6/20, passed in constitutional petition number 17 of 2019 and other connected matters, along with supporting detailed reasons given in the majority judgment of the same date, are recalled and set aside. All the subsequent proceedings, actions, orders, information and reports in pursuance of the directions contained in the short order dated 19/6/2020 and the detailed reasons thereof are declared to be illegal and without any legal effect. Resultantly, any such proceedings, actions, orders or reports cannot be considered or acted upon and pursued any further by any forum or authority, including the Supreme Judicial Council. This order is signed by Justice Maqbool Baqir, Justice Mazur Ahmad Malik, Justice Madar Alam Khan Mia Khail, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah and Justice Aminuddin Khan. Another short order signed by Justice Yahya Afridi is as follows. For the reasons to be recorded later, all review petitions except CRP 296 of 2020 are allowed and the directions contained in paras 4 to 11 of the order dated 19/6/20 and detailed judgment dated 23/10/20, passed in CP number 17 of 2019 and other connected petitions are recalled. Consequently, all the subsequent proceedings, actions, orders and reports made in pursuance to the said directions are declared to be of no legal effect and or consequences. Signed, Justice Yahya Afridi. Thank you very much. जी हाँ नाजरीन, ये आपने फैसला तो सुन लिया। ये 6-4 का फैसला है 6 जजेस ने, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मदर आलम मियां खेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। इन्होंने इन 6 जजेस ने मेजॉरिटी से मिसेस सरीना ईसा और पाकिस्तान बार कौंसिल की, जिनके लिए हामिद खान साहब ने आके दलाइल दिए थे, इनकी पिटिशंस कबूल करते हुए, दीगर बार कौंसिल की पिटिशंस कबूल करते हुए जो FBI की रिपोर्ट है, जो FBI की रिपोर्ट के लिए कार्रवाई की गई, वो तमाम कालेदम करार दे दिया और उस फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए कालेदम करार दी है, क्योंकि अब वो फैसला माइनॉरिटी में चला गया है। और उस फैसले के साथ अब भी जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद हैं, ये 4 जजेस अभी भी उस फैसले को अपहोल्ड कर रहे हैं। लेकिन जो 6 जजेस हैं उन्होंने इनके फैसले से को सेट असाइड कर दिया और अब ये एक डिसेंटिंग व्यू कहलाएगा ये 4 जजेस का। ये बड़ा ही आपको हम बताएं कि ये बड़ा ही एक लिहाज से अगर आप देखें
चीज़ है, एक बड़ी ही दिलचस्पी की इसमें जो आप हमको कानूनी जुबान में बताएं, जो अमूमन जो प्रैक्टिस चलती है कि जो इस बेंच के हेड हैं अब वो माइनॉरिटी में और वो डिसेंटिंग व्यू दे रहे हैं। हालांकि वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, ये बहुत ही हमें कम से कम मैंने नहीं देखा कि जो एक चीफ जस्टिस हो या चीफ जस्टिस बनने वाले हों कुछ माह के अंदर उनके साथ मेजॉरिटी उनको छोड़ जाए और वो माइनॉरिटी में चले जाएं और उनका माइनॉरिटी में फैसला हो। तो ये बड़ा एक दिलचस्प था ये देखना। लेकिन जो आज जब ये फैसला आया तो कोर्ट रूम के अंदर भी बड़े मनाजर थे। इससे पहले जो आज तमाम आर्गूमेंट्स हुए उसके दरमियान आज भी जस्टिस उमरताब बंदयाल ने वो एफबीआर की रिपोर्ट के एक हिस्से को लाने की कोशिश की जिसको जस्टिस काजी फैज ईसा ने इंतहाई सख्ती से अपोज किया और उन्होंने कहा, जस्टिस उमरताब बंदयाल को उन्होंने कहा कि माय लॉर्डशिप आप बताइए कि एक मामला आपका अगर रिव्यू पिटीशन 19 जून के ऑर्डर के खिलाफ है, पोस्ट 19 जून जो कार्रवाई हुई है यानी कि 19 जून के बाद जो कार्रवाई हुई है आप उसका हिस्सा कैसे इस बेंच के अंदर ला सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आप बताइए। उन्होंने फिर जस्टिस उमरताब बंदयाल को हवाला भी दिया कोड ऑफ कंडक्ट का। उन्होंने कहा आप उस कोड ऑफ कंडक्ट को ज़हन में रखिए और फिर आप याद रखिए। और मतलब उन्होंने याद उनका हल्फ याद करवाया कि आप अपना हल्फ याद कीजिए, आप जो कर रहे हैं आप कैसे कर सकते हैं। फिर जो जस्टिस मंजूर मलिक हैं उन्होंने फिर इस चीज़ को अपोज किया कि वो चीज़ यहाँ पोस्ट 19 जून की चीज़ यहाँ पर कैसे आ सकती है। जस्टिस मदर आलम मियां खेल ने उसको अपोज किया, जस्टिस मकबूल बाकिर ने किया, सब लोग मतलब उसमें इवन के जस्टिस काजी अमीन अहमद ने भी कहा कि ये यहाँ पर ये कोई ट्रायल नहीं हो रहा कि यहाँ पर आप इस तरह से पोस्ट 19 जून की चीज़ से आप यहाँ पर ला के कानूनी शहादत में आगे सामने रखने लग गए। तो ये बड़ा ही दिलचस्प था ये तमाम मनाजिर और ये देखना। लेकिन आज जब ये बेंच की जो समाअत थी वो तकरीबन 12:40 पर जब कंक्लूड हुई तो उस तरह जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान उन्होंने कहा कि जो सबसे दिलचस्प बात है मिनिस्टर ऑफ लॉ जो फरोग नसीम है वो चाहते हैं कि आप कल तक का वक्त दे दें क्योंकि उनकी कमर में बहुत दर्द है और वो टीके लगवा रहे हैं कमर की दर्द के। तो उनके तो उस पर जजेस ने कहा कि निकाल सुन सकता है उनको कहीं अपने तहरीरी आर्गूमेंट्स दे दीजिएगा हम देख लेंगे। तो एक और जो हुकूमत की डिले करने का जो आखिरी कोशिश थी वो आज ज़ाया हुई। और उसके बाद जो बेंच था उन्होंने उठते हुए जस्टिस उमरताब बंदयाल ने कहा कि हम आधे घंटे से 1 घंटे में हम ये या शॉर्ट ऑर्डर आज सुना देंगे या हम कल सुना देंगे। उसके बाद जस्टिस काजी फैज ईसा कमरा अदालत में मौजूद रहे, हम सहाफ़ी भी उनसे जाके बात करते रहे, गपशप करते रहे इनफॉर्मल, लेकिन कोई केस के मेरिट्स के ऊपर बात नहीं हुई या कोई उनसे सहाफ़ी बार बार फैज़ाबाद केस के ऊपर पूछते रहे। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, वो मैटर अभी रिव्यू में है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो ये सब कुछ होता रहा। और उसके बाद फिर जब अब वो जो दिलचस्प हिस्सा है वो ये है कि फिर उसके बाद जब बेंच वापस आया तो हमें वहाँ से इंडिकेशन मिल गई कि जस्टिस काजी फैज ईसा ये केस जीत चुके हैं। कि जब बेंच दाखिल हुआ तो जस्टिस मकबूल बाकिर जो कराची का एक मलंग जज हैं जिन पर खुदकुश हमला हुआ और अल्लाह ने इनको महफूज रखा और बड़े दलेर जज हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि वो दूसरे जस्टिस काजी फैज ईसा होते इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन उन्होंने बस चीफ जस्टिस नहीं बनना। अदरवाइज वो जस्टिस काजी फैज ईसा के पाए के जज ही हैं। वो सूबाई खुद मुख्तारी में इस कोर्ट में सबसे क्लियर व्यू वो रखते हैं और वो सूबाई खुद मुख्तारी के हक में वो जज हैं। 18वीं तरमीम के हक में जो सबसे क्लियर व्यू रखता है वो जस्टिस मकबूल बाकिर ही हैं। और जो नैब के ऊपर भी सबसे ज़्यादा नैब की जो सियासी प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर भी सबसे जो क्लियर व्यू रखते हैं वो भी जस्टिस मकबूल बाकिर हैं। तो बाद जस्टिस मकबूल बाकिर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंटर हुए जब कोर्ट रूम के अंदर तो उनके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी और वो हंसते हुए कोर्ट रूम के अंदर जब एंटर हुए तो हमने सबसे पहले उनको नोट किया। हमने अगर जस्टिस मकबूल बाकिर हंसते हुए आए हैं तो इसका मतलब है हुकूमत की पार्टी इज ओवर। हुकूमत ने जितनी भी मैन्यूवरिंग करनी थी जो सब कुछ करना था द पार्टी इज ओवर। और उसके बाद फिर जस्टिस मकबूल बाकिर आके बैठे और उसके बाद जस्टिस काजी फैज ईसा मिसेस सरीना ईसा उनकी बेटी जोनसी हैं जो हैं सहर ईसा वो खड़ी हो गई। और इसके बाद जो थ्रू आउट हम नोट कर रहे थे कि जब बैठ भी रहे थे जजेस बैठने के बाद भी जस्टिस मकबूल बाकिर की नज़रें सिर्फ जस्टिस काजी फैज ईसा के चेहरे पर थी और वो थ्रू आउट स्माइल किए जा रहे थे। तो एक बेंच का डेकोरम होता है कि जो बेंच का सरबराह होता है फैसला उसने अनाउंस करना था, चाहे वो उस वक्त माइनॉरिटी में जा चुका हो और मेजॉरिटी जजेस ने उससे इख्तलाफ कर लिया हो। तो फिर जस्टिस उमरताब बंदयाल ने ही फैसला सुनाना था, लेकिन जस्टिस मकबूल बाकिर स्माइल किए जा रहे थे और देखे जा रहे थे जस्टिस काजी फैज ईसा की तरफ, लाइक जैसे वो कहना चाह रहे हो कि माय लॉर्डशिप आप आ गए हैं वापस, यू आर बैक टू द कोर्ट। और उसके बाद उन्होंने वो फैसला जस्टिस उमरताब बंदयाल ने पढ़ना शुरू किया और उन्होंने बताया कि 6-4 की मेजॉरिटी से जो रिव्यू पिटिशंस हैं वो अलाउ कर दी गई हैं
और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में के सामने जो रिपोर्ट है वो कालेदम करार तस्वर होगी और उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़ेर गौर नहीं ला सकेगी। और इस तरह उन्होंने तमाम फैसला सुनाया और उसके बाद जब वो उठ के जाने लगे, जो ही जजेस जब उठ के निकले तो उस दौरान भी हमने फिर देखा कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे वो खड़े थे, मिसेस सरीना ईसा और जो उनकी बेटी थी वो रो पड़ी और फिर दोनों माँ बेटी गले लगीं और गले लग के उन्होंने एक दूसरे को आप कह सकते हैं मुबारक दी। फिर जो वकला थे सीनियर वो फौरी तौर पर जस्टिस काजी फाइजा की तरफ बढ़े और उन्होंने आकर जस्टिस काजी फाइजा को मुबारक दी कि मुबारक हो, आप ये केस जीत गए, आप हक पे थे, आप आज कामयाब रहे। तो जस्टिस काजी फाइजा ने उन सबको जवाब में कहा कि मैं आप सबको मुबारक देता हूं, मैं आप सबके लिए खड़ा हुआ था, मैं इस इदारे के लिए खड़ा हुआ था, ये आप सबको मुबारक हो। और उन सबको कहा कि अल्लाह मियाँ आप सबको आप गॉड ब्लेस यू ऑल उन्होंने कहा। और फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए जस्टिस काजी फाइजा और मिसेस सरीना ईसा और जो उनकी बेटी थी वो कोर्ट रूम से चले गए। और जो दिलचस्प बात है, अब इस बेंच के दौरान जो जस्टिस मंजूर मलिक जिन्होंने रिटायर होना है 30 अप्रैल को, तो अब हम कह सकते हैं कि जस्टिस मंजूर मलिक ने जाते जाते अपनी लेगेसी को बचा के हिस्ट्री में अपना नाम अब लिखवाया है कि ही इज़ द मैन, कि जिन्होंने उन्होंने मज़हर आलम मियाँ खेल ने, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल कम गो जज है लेकिन उन्होंने कम बैक किया और उन्होंने दिखाया कि नहीं, वी आर द वंस, हम इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ खड़े हैं, हम उन साजिशों का शिकार नहीं होने देंगे इस अदारे को जो इस्टेब्लिशमेंट और इस पपेट हुकूमत ने घड़ी। उसके अलावा जो जस्टिस अमीनुद्दीन जो नए जज शामिल हुए थे इस बेंच के दौरान, उन्होंने भी रेजिलियंस शो की और वो भी गेम चेंजर शामिल हुए इस बेंच के अंदर। और उसके अलावा अगर इससे पहले भी देखे जाए, जब ये पहली दफा बेंच में था 8 रुकनी था जब बेंच टूटा, उसके दौरान आपको जस्टिस सरदार तारिक मसूद का किरदार भी याद रखना चाहिए कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी की रोल प्ले किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं सुनूंगा ये केस, और उनकी वजह से वो बेंच टूटा। अगर वो केस सुनने के लिए बैठे रहते तो शायद बेंच ना टूटता और फिर शायद आज हालात में मुख्तलिफ होता, लेकिन उनको भी पता था कि क्या साजिश है और उनके कंधे को भी किस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। तो उन्होंने भी जिसे कहते हैं केस सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिर बेंच टूट कर 10 रुकनी फुल कोर्ट बनी। उसमें भी एक दफा फिर 7-3 का फैसला आया, लेकिन फिर जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, इन लोगों ने भी रियलाइज किया। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह तो डे 1 से बड़े क्लियर रहे, जस्टिस याहिया अफरीदी डे 1 से बड़े क्लियर रहे, दे न्यू कि ये साजिश है क्या। और उन्होंने जो डिसेंटिंग नोट भी लिखे उसमें भी उन्होंने हुकूमत की बदनीति को, साजिश को, जासूसी को, सबको उन्होंने निशाना बनाया। और अब जो इसका सबसे खौफनाक पहलू है वो यह है कि अब जब ये फैसला ये 6 लोग लिखेंगे जो कि जस्टिस मकबूल बाकर अब इम्कान है कि ऑथर होंगे, तो अगर वो ऑथर होंगे तो याद रखिए ये एक फैज़ाबाद के मुकाबले का फैसला आने जा रहा है, एक और फैज़ाबाद जजमेंट फैसला आने जा रहा है इस केस के अंदर, जो हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट सब के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं ना उनकी चूल्हे हिला देगा। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।